Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अर्थनीति और कारोबार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर। आज रविवार है और रविवार के दिन खास तौर से हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं म्यूचुअल फंड पर चर्चा के लिए। आप भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो निसंकोच डायल कीजिए 2331 4444 2331 4444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Prime Minister says 8 crore people were provided gas connection under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Banks have sanctioned loans worth 1.6 lakh crore rupees to over 42 lakh MSMEs under Credit Guarantee Scheme, says Finance Ministry. And India will become self-reliant in fertilizer production by 2023, says Union Minister Sadanand Gowda. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ लोगों से अधिक को गैस कनेक्शन दिया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 42 लाख से अधिक एमएसएमईज को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए गए। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा वर्ष 2023 तक भारतवर्ष उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। In our top story, Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation 3 key projects related to the petroleum sector in Bihar through video conferencing today. The projects include the Durgapur-Banka section of the Paradeep-Haldia-Durgapur pipeline augmentation project and 2 LPG bottling plants in East Champaran and Banka. Addressing on this occasion, Prime Minister Narendra Modi said gas-based industry and petro connectivity will give momentum for development in Bihar and eastern India. Mr. Modi said 900 crore petro projects will provide ample job opportunities. He said 1 crore 25 lakh cylinders will be filled per year at bottling plants in Banka and East Champaran. Prime Minister Narendra Modi said 8 crore people were provided gas connection under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Mr. Modi said during the corona period, free gas cylinders became the boon for the poor people. And now we're joined by Ashish from Pune. Ashish, a warm welcome to the program. Please ask a question to our mutual fund expert, Dhirendra Kumar. Hi, this is Ashish. I'm calling from Pune. Wanted to know which mutual fund we should like. I have some mutual fund for the government, which is from the debt fund. So should we move more to debt fund or should we liaise on the equity-based fund? It entirely depends on your needs. When investing in mutual fund, it should not be, even dependent on any expert. Investing for many years, you should consider equity fund. And investing for short term, investing for medium term, it should always be fixed income fund. Whether it be a government securities fund or a short-term fund or a corporate fund or a liquid fund, depends on the period of your investment. Money for a few days, consider a liquid fund and such funds where the downside risk is very low. Investing for a few years,
always consider equity. And the kind of fund to invest, generally a fund which is low maintenance, which invests all across. It helps you achieve diversification. And then how to choose a good fund, a fund with consistent performance, not necessarily the best performance in the recent times. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं किरण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। सर मेरा सीपीएससी ईटीएफ के बारे में सवाल है। उसमें जो रिटर्न आते हैं वो किस प्रकार से आती है, डिविडेंड आता है या अदर कुछ फॉर्म होता है इनकम रिटर्न का? मैंने एक लमसम अमाउंट निवेश किया था 4 साल पहले, लेकिन अभी तक उस पर मुझे कुछ भी रिटर्न आए नहीं। तो इस रिटर्न का किस प्रकार से फॉर्म स्वरूप होता है ये जानना था मुझे। धन्यवाद। जी हाँ, सीपीएससी ईटीएफ ये एक ईटीएफ है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज में पैसा लगाता है, और इसका जो पोर्टफोलियो, और आपने देखा होगा कि इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है कि ये केवल 12 शेयर में पैसा लगाता है, और वो जो 12 है वो उसमें से 75% कंपनियां करीब केवल एनर्जी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। केवल 25% नॉन एनर्जी कंपनी में लगा है। इससे डिविडेंड नहीं मिलता है। जो भी रिटर्न है ये आपको दाम में ही इसका रिफ्लेक्ट होता है। रोज का जो एनएवी कैलकुलेट होता है, और आपके लिए वो एनएवी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर आपको इसको बेचना हो तो आप केवल बाजार में इसको बेच सकते हैं। और अगले कॉलर है RM माथुर, नोएडा से कॉल कर रहे हैं। माथुर साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। आपकी मार्केट मंत्रा टीम को बहुत बहुत नमस्कार, और धीरेन्द्र जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ है। फिलहाल म्यूचुअल फंड में कोई अब इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास 12 लाख आने वाले हैं। मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया है, 2 लाख एनपीएस में, बाकी अमाउंट इक्वली आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक एंड मोतीलाल ओसवाल S&P। ये 3 में मैं लगाना चाहता हूँ डिविडेंड ऑप्शन से। मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं हूँ। आप डिविडेंड में क्यों लगाना चाहते हैं? ये अर्निंग के लिए, क्योंकि एफडी में तो इंटरेस्ट बहुत कम है, तो मैं डिविडेंड लेके उसका मतलब मंथली मुझे मिलता रहे या जो भी आए, एनुअली आए। पर ये जो अधिकतर फंड है इसमें हो सकता है डिविडेंड आपको लगातार ना मिले। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी, ये लंबे समय का निवेश है, लेकिन आप इस पे निश्चिंता से रेगुलर इनकम के लिए आप निर्भर नहीं कर सकते हैं। और एनपीएस में 2 लाख, मुझे लगता है इसको अपनी जरूरत के हिसाब से कि आपका उद्देश्य क्या है, और उसका जरा बारीकी से आकलन करें, और फिर जरूर अपनी रणनीति निर्धारित करें। नैस्डैक 100 और S&P 500 एक तरह से 50% पैसा आपका विदेशी बाजार में लगा रहेगा, और दोनों में थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो भी है। अगर आप ज्यादा रिटर्न के लिए पैसा लगा रहे हैं तो नैस्डैक में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन वहां बेहतर रिटर्न मिल सकता है, और अगर ये बहुत सालों के लिए पैसा लगा रहेगा। S&P 500 स्टेबल होगा नैस्डैक 100 की तुलना में, और लंबे समय में वो ज्यादा नैस्डैक 100 की तुलना में उसका रिटर्न थोड़ा कम रहा है। आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं प्रशांत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम का सर। जी, स्वागत आपका। हाँ सर, पिछले जनवरी और फरवरी मंथ से मैंने तो 4 फंड है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड एंड यूएस अपॉर्चुनिटी, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड एंड मेरे एसेट टैक्सेशन फंड, इसमें तो मैंने इन्वेस्ट करता हूँ। तो सर धीरेन्द्र जी से सर मेरा क्वेरी है, इज इट ओके फॉर माय पोर्टफोलियो, इज इट आइडियल, और शुड आई टेक one or two more small or multi-cap fund? No, this is good. There is nothing called ideal. One can fine tune it, tweak it. But I think this is an excellent portfolio which you have built, and I would say that most of us should resist the urge to invest in more funds for the sake of it. और अगले कॉलर है अरुण, जो दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। अरुण जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। I just wanted to find out why it is called mutual fund
because we do not know who is spending, where he is spending, how he is spending, when he is spending. What is mutual in it? Yeah, it's an interesting question. And I haven't thought about it as much, but my understanding is that every mutual fund has a clearly stated objective. And the stated objective is that if anybody investing in that fund should have, is buying into that unified, when you are investing in a fund, it has a clear mandate, and everybody participating in that is buying into that idea. And the reason why it is called mutual funds, literally so, is that everybody is an equal owner of mutual fund, all the unit holders, and everybody is entitled to the proportionate benefit or proportionate, losses or gains and expenses. It is equally divided and in a fairly standardized way. There is nothing unusual in the sense that some people will have this special privileges, some people will have lower privileges. All mutual fund unit holders are equal. दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Good evening to Dhirendra ji and the team. Great work you people are doing. My question is, sir, that what will be the repercussion on the new SEBI rule of putting 25% each in small cap, mid cap, in multi-cap fund? Will there be a big surge in the stock market, especially in the small cap and mid cap? Thank you, sir. Yeah, this is something which has come as a surprise. That SEBI has announced a new rule on Friday evening that 25% money of the minimum that a multi-cap fund can invest in the money of a multi-cap fund is 25% each in large cap, mid cap, and small cap. And so from that standpoint, it has come as a surprise. This is very unrealistic because a multi-cap, if we look at the capitalization of the whole market, if we take the 500 stocks or if we take the 1,000 stocks, and then classify them by capitalization, it will be something about 75% large cap. Indian market, adding the capitalization of all companies, 75-78% will be large cap, remaining 10-15-18% will be mid cap, and the bottom 10-12% will be small cap. So if a fund manager is forced to invest a minimum of 25% into mid cap and small cap, it will increase the risk. It is also not multi-cap, the kind of benchmark that they follow. I visualize, there are 2-3 possibilities. One is that SEBI might, revise the rules because they might, it has been done in a hurry and they will understand and undo it or revise it. The other, and the way it can be revised is 2 things. One is, what I was saying, that it could be reflective of the market character in terms of 70-75% into large cap, 20-25% into mid cap, with some margin, with some plus minus 10% framework, or 10-15% into small cap. So that will actually solve the problem, and it will also become a multi cap. The other is just change the name, because the dispute could be that these are basically dynamic equity funds. The fund manager has been given a mandate, and that is how all the offer documents actually look like, that the fund manager will use his discretion to invest in large cap, mid cap, small cap. In fact, some of these funds, before the SEBI classification came into play, the name of some of these funds was called flexi cap, that they have the flexibility to invest wherever it be. This is the only category where they have the flexibility to invest anywhere. Otherwise, there are clearly stated categories, which is large cap, mid cap, small cap, or whatever. Then, the third thing is that, and I don't think that the mutual funds are going to really disrupt or chase small stocks. One is that it is 4 months away. The other is that because there is absolutely no capacity to invest so much money, if we look at the investment in multi-cap fund, if 25% money is to be invested in small cap, we simply don't have that kind of supply, and they will be on fire. And I don't think it will be prudent for investors. It will increase the risk of some of these funds. So I have come across, many official view of the fund managers. They have gone on record that they are not going to really invest in small caps in a hurry. आइए चलें ठाणे से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर आदित्य। आदित्य, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
धीरेन्द्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि डेट जो मेरे 3 साल एक्चुअली में है, पहला सवाल मेरा ये है कि जो डेट मार्केट है इंडिया का, वो कुछ लोग कहते हैं कि इतना डीप नहीं है, तो डेट मार्केट के डीप होने का मतलब क्या? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने मुझे एक प्रोग्राम में बताया था कि म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ के बनने के लिए कुछ सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड की जानकारी होनी चाहिए, तो अगर आप कोई वेरीफाइड सोर्सेज बता सकें जिससे जानकारी ली जा सके। और तीसरा सवाल ये है मेरा कि जो है इन्वेस्टर्स इतना कम इन्वेस्ट क्यों करते हैं डेट फंड में? जैसे कि जुलाई में, अगस्त, जून में, मतलब किसी तो महीने में 40,000 करोड़ रुपए इक्विटी में आए थे, लेकिन सिर्फ 1,000 करोड़ डेट में आया था। तो आपको क्या लगता है क्यों, इसका कारण क्या है? कहीं हमारे यहाँ जो पैसा डेट फंड में लगा हुआ है, जो पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, उससे आधे से ज्यादा डेट फंड में लगा हुआ है। लेकिन डेट फंड कम पॉपुलर है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए क्योंकि उनके पास बहुत सारे सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। अगर किसी आदमी को 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया लगाना हो और वो निश्चिंत रहना चाहता है, तो म्यूचुअल फंड के बजाय उसके पास दूसरे विकल्प हैं। हर कोई गली मोहल्ले में एक बैंक है जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे आप रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, MIP कर सकते हैं, एक मुश्त पैसा लगा सकते हैं, और वो सब कुछ सुरक्षित है। भरोसा कि आपका पूंजी और आपको समय पे आपको ब्याज मिलेगा, और यही फिक्स्ड इनकम होता है, यही डेट फंड होता है। जो बड़े निवेशक है उनके लिए, चूंकि उनके बड़े पैसे पे जो करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, उस पर कुछ खास पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। हाल फिलहाल जो ब्याज दरों में कमी आई है, तो बहुत सारे लोग उत्सुक हुए हैं कि उन्हें कहीं से और से रिटर्न चाहिए, ज्यादा जोखिम लिए बगैर। और तो कुछ बड़े निवेशकों के लिए, मिड साइज निवेशकों के लिए और कंपनियों के लिए खासकर डेट फंड काफी अट्रैक्टिव है। और म्यूचुअल फंड आमतौर पे भारत में अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और इस वजह से लोग कम लगाते हैं। And now we're joined by Sundaram from Mumbai. A warm welcome to the program, sir. Please ask your question. So good evening. I'm Sundaram from Mumbai. You've been doing a wonderful job. I've gained immense knowledge by listening to your program. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, please ask your question. Yes, Sundaram. I'm afraid we have just lost Sundaram, our caller on the program. Dhirendra, I just wanted to ask you just an add-on question to what our listeners have been asking you as well regarding debt funds. Isn't it true that in the debt funds, the portfolio manager actually invests in money market instruments? So why is it that the redemption and liquidity is not the same as that for equity-based mutual funds? No, debt funds are pretty liquid, in a sense that a good part of the debt market is very liquid. In fact, it is more liquid than equity market, because every bank is a participant in the debt market. The debt market is structured differently. There are funds for which we have infinite liquidity. In fact, they have far greater liquidity even as compared to equity funds. Because if you look at the money market, but all funds do not invest only in money market instruments. Debt funds invest in government securities, corporate debt, and short-term as well as long-term. There is a possibility that for many of the lower-rated, medium-term and long-term fixed income or corporate debt, there is not, and the market for the corporate debt keeps changing. Sometimes there is reasonable liquidity, sometimes there is not. And particularly what we saw in the month of March, when with this Franklin Templeton, where the fund faced a huge crisis, was that liquidity completely disappears, and it happens even in equity market. Equity market looks liquid simply because there is a code. That doesn't mean that you have infinite liquidity. The liquidity with a significant impact cost is what we see in the equity market. You have something available for 100 rupee, and if you want to sell 5% of that equity, the price will go down substantially. More sellers than buyers, and it drives down the prices. And drives down the prices by a wide margin. In fixed income, it cannot happen, because at a certain price, because fixed income has very defined contours, 3 variables which drive any debt, which is that it has to mature at this point. What will be the interim cash flow? You will be entitled to the coupon in the interim at the defined periodicity, whether it be 6 months, 1 year, whatever. And then what is the quality of that. Very highly rated, a Tata company normally has, a different kind of perception and does not have that discount. So in between, there is a situation that it disappears. So fixed income also a part of the fixed income market also goes out of favor. There is lack of liquidity. And in equity, optically we see that there is infinite liquidity, but it is not, because it comes with a huge
substantial impact price as well, impact cost. हमारे साथ मुंबई से एक बार फिर जुड़ चुके हैं सुंदरम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछ लीजिए। सॉरी टू बॉदर यू अगेन, फोन कट गया था जी। तो मैंने 12 लाख को क्वेश्चन किया था तो उनकी राय चाहिए। हम सीनियर सिटीजन हैं। आपका सवाल हम नहीं सुन पाए थे सुंदरम। ऐसा है कि मेरे पास 12 लाख आए हैं अभी, तो मैं चाहता हूँ उसको म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट एडवांटेज फंड में लगाना और कुछ उसमें नैस्डैक में और S&P जो मोतीलाल के दो, उसमें डिविडेंड इनकम में लगाना चाहते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 30 लाख का एफडीज है, तो उससे इंटरेस्ट आता है मुझे, लेकिन ये अब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ डिविडेंड से मैं पैसा ले लूँ। सुंदरम, आप इस फंड से जो इनकम आएगा उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हैं। हाँ, मेरी पेंशन नहीं है, डिपेंडेंट तो है पैसे पे। अच्छा, आप इस पर निर्भर करेंगे। तब मेरी सलाह होगी कि आप डिविडेंड के बजाय आप जरूर एक पोर्टफोलियो बनाइए, और वो बैलेंस एडवांटेज फंड का ही आइडियली होना चाहिए, और केवल एक दूसरा फंड 1/4 पैसा 25% 3 लाख रुपया आप नैस्डैक 100 में लगाइए, बाकी 75% आप 1 या 2 बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाइए। और यहाँ पर से डिविडेंड चूज करने के बजाय आप 12 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो 5-6% का विड्रॉल रेट, ये म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का चुनाव कर सकते हैं। ये डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड तो म्यूचुअल फंड तभी देगा जब उसकी इच्छा होती है, और कितना देगा वो भी उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको अगर ये 12 लाख लगाने पे अगर जो मासिक आमदनी की जरूरत है उसका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप शुरू में ही डिफाइन कर सकते हैं, और उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में 2 या 3 फंड से आप क्वार्टरली बेसिस पे या हर महीने आप विड्रॉल चूज कर सकते हैं। तो वो पैसा हर महीने नियमित रूप से एक निश्चित रकम आपके पास आ जाएगी। And before we take our next caller, Ramesh from Delhi, here is our second headline story. The Union Finance Ministry today said banks have sanctioned loans worth over 1.63 lakh crore rupees to more than 42 lakh business units under the 3 lakh crore rupees Emergency Credit Line Guarantee Scheme for the MSME sector. Out of that, over 1.18 lakh crore rupees has been disbursed to 25 lakh MSME units till September 10. The scheme is the biggest fiscal component of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan package announced by the government in May. Sharing details of other schemes being implemented by the ministry, it said banks have approved purchase a portfolio of 25,055.5 crore rupees under 45,000 crore rupees Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 for NBFCs, HFCs and MFIs to do fresh lending to MSMEs and individual schemes as on August 28. Talking about income tax refunds, it said the department has issued 1,01,308 crore rupees to more than 27.55 lakh taxpayers between April 1st and September 8 period. It further said under the 30,000 crore rupees additional emergency working capital funding for farmers through NABARD scheme, 25,000 crore rupees has been disbursed till August 28. आमंत्रित करते हैं अब दिल्ली से रमेश जी को। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैंने अभी SBI की स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन में लमसम इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश की थी, तो ये पता चला कि उसमें 8 सितंबर के बाद इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, लमसम इन्वेस्टमेंट। तो ये पूछना था कि ये सेबी की गाइडलाइंस के तहत हुआ है या इनका खुद का डिसीजन है, और यदि ये केवल SBI के साथ है तो कोई और स्मॉल कैप है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। और दूसरा सर, ये पूछना था कोई ऐसा बहुत अच्छा कोई फार्मास्यूटिकल फंड और प्लीज बताएं। ये जो SBI का स्मॉल कैप है, हर एक फंड को आजादी है कि वो कब पैसे ले। आज SBI को लगता है कि उसका फंड काफी बड़ा हो गया है, ये उचित समय नहीं है निवेशकों का पैसा लेने के लिए, इसलिए SBI के स्मॉल कैप फंड ने लमसम पैसा लेना बंद कर दिया। लेकिन ये आपको नहीं रोकता है, आप SIP अभी भी कर सकते हैं। और इस तरह अक्सर और ये सभी के नियमों में ये इसका प्रावधान है कि अगर फंड को अनुचित लगता है इस समय पैसा लेना तो वो पैसा ना ले। इस वजह से ये रुकावट है। लेकिन आप और मेरी सलाह होगी कि हर किसी को कि इस तरह के फंड में रेगुलरली पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास एक साथ पैसा लगाने को है, उसके बावजूद इस पैसे को 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने में इसको स्प्रेड करके लगाइए। दूसरे स्मॉल कैप अगर मुझे सुझाने हो तो बहुत सारे विकल्प हैं। SBI का स्मॉल कैप जरूर एक अच्छा फंड है, एक्सिस का स्मॉल कैप है,
कोटक का स्मॉल कैप है, ये कुछ दूसरे अच्छे विकल्प रहे। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि वर्ष 2023 तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश भर में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से नए खाद कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे आयात पर निर्भरता कम होगी। श्री गौड़ा ने आत्मनिर्भर भारत और सतत कृषि पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में सरकार ने 4 यूरिया उत्पादन संयंत्रों का पुनरुद्धार किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय जैविक और सूक्ष्म उर्वरक के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। ये 25 से 30% तक सस्ते हैं और इनसे 18 से 35% तक उपज बढ़ जाती है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से यूरिया का उचित ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए कहा कि अधिक यूरिया प्रयोग करने से कृषि भूमि खराब हो जाती है। उन्होंने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह दी है। And our next caller is Sushil from Delhi. Sushil, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. हेलो जी, सुशील जी आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मैं सुशील बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर मुझे धीरेन्द्र जी से एक क्वेश्चन करना था। जी जी हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप पूछें सवाल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2009 से सर फ्रैंकलिन का एक प्राइमा प्लस एक फंड आया करता था जो आजकल इक्विटी में चेंज हो गया, जिसका नॉमेनक्लेचर। मैं 2009 से सर इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा है कि इसमें वैल्यू रिसर्च पर इसकी जो रेटिंग है वो 2 स्टार की हो गई है। तो सर बीच में मेरा काफी मतलब कि पैसा मैंने इसमें कुछ निकाला भी है, लेकिन मेरे को रिटर्न इसमें 5% समथिंग की शो कर रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या इसको बंद करके जो पैसा मेरा सिप का चल रहा है वो मैं किसी दूसरे फंड में डालूं। एक तो सर मेरा ये क्वेश्चन का प्लीज मेरे जवाब दीजिए। और दूसरा सर है कि बाई द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी डॉटर ने अभी स्टार्ट किया है अपना अर्निंग के लिए, जॉब में लग गई है, तो मैं चाहता हूँ वो भी कुछ अपना म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करे। तो सर उनके लिए क्या बेस्ट फंड होंगे? उनकी अभी 827 स्टार्ट है सर अभी। थैंक यू, मैं वेट कर सकता हूँ सर आपके आंसर के साथ। फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, जिसका नाम पहले प्राइमा प्लस था, ये पिछले कुछ दिनों से इसका प्रदर्शन सचमुच कमजोर रहा है। पिछले 5 साल में और फंड की तुलना में अगर 5 साल में हम देखें तो टोटल रिटर्न इंडेक्स का जो रिटर्न है वो इस फंड से करीब करीब 5% इस फंड ने रिटर्न दिया पिछले 5 साल में, और यहाँ पे रिटर्न 8-9% का है। और मल्टी कैप फंड ने भी इस फंड से कम 1.5 गुना ज्यादा रिटर्न मिल पाया है औसतन। तो मुझे लगता है ये जरूर खराब प्रदर्शन है। लेकिन प्राइमा प्लस का जो लंबा हिस्ट्री है, जिसमें ये 17% रिटर्न दिया है सालाना 1994 से, और जब कभी भी बुरा वक्त बाजार में आता है तब ये फंड विथस्टैंड कर पाता है, इस बार नहीं। तो मेरी सलाह होगी कि ये बिल्कुल बदलाव का समय है। दूसरे बहुत सारे विकल्प हैं और लगाया हुआ पैसा आप एक साथ निकाल करके, क्योंकि ये जो आपने SIP के जरिए किया है वो पैसा लगाने के समय एवरेज करने की जरूरत है। लेकिन ये जो एवरेज आप कर चुके हैं और इस पैसे को अगर बदलना हो क्योंकि इस फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो इस फंड को एक मुश्त जरूर लगाएं। दूसरा कि आपकी बेटी की नौकरी शुरू हुई है, वो पैसा बचा पा रही है, थोड़ा उसको भी क्रेडिट दीजिए भगवान को केवल देने के बजाय। और एक निर्भर करता है, अगर उनका टैक्स लगना है तो टैक्स सेविंग फंड में उतना पैसा लगाएं जिससे कि ये शुरुआत हो पाएगी। और अगर टैक्स नहीं लगना है तो मेरी सलाह होगी कि उनको बैलेंस फंड या किसी इक्विटी फंड में, क्योंकि शुरुआत में तो क्या रिस्क कम करें, क्योंकि अभी उसके पास कोई बचत ही नहीं होगा और एसेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। तब भी मुझे लगता है कि किसी इक्विटी फंड में, और आप उनकी बड़ी मदद करेंगे अगर आप उनको बताएंगे कि ये कैसे खुद करना है। ये सब कुछ उनके लिए खुद कर पाना संभव होगा आज। बस यहीं पर हम श्रोताओं की ओर से धीरेन्द्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मैनेजर आपको। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister says 8 crore people are provided gas connection under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Banks have sanctioned loans worth 1.6 lakh crore rupees to over 42 lakh MSMEs under the credit guarantee scheme, says Finance Ministry. And India will become self-reliant in fertilizer production by 2023, says Union Minister Sadanand Gowda. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.